Uh, the Ahmadiyya Muslim Peace Prize for the Advancements of Peace is awarded to a person for his or her outstanding contribution for the cause of peace. It is now its 5th year, and it gives me great pleasure to announce that this year's Peace Prize is being awarded to Mrs. Sindhutai Sapkal. Mrs. Sapkal is an outstanding lady who has a remarkable history. Born on the 14th of November 1948 at Pimpri Meghe, a small village in India, Mrs. Sapkal's life started as being an unwanted child. She married at a very young age to an abusive husband who abandoned her when she was 9 months pregnant. Though her father supported her and was keen on educating her, she could not continue her studies after the 4th grade due to family responsibilities and early marriage. She spent most of her time begging, and she realized that there were many orphans and children abandoned by their parents. She could feel their pain and decided to adopt them. She started begging more earnestly in order to feed the many children that she had adopted. Gradually, she decided to adopt every child who came across as an orphan, and over a period of time, she emerged as the mother of orphans in India. For the past decade, she has now become mother to nearly 2,000 orphans. Even though this day she continues to fight for the next meal, she does not take any support from anyone, and all her efforts go into feeding the destitute. As well as education, Mrs. Sapkal has helped the orphans to get married and supported them to settle down in life. She treats them as her own children, and some of them are now lawyers, doctors, and engineers. Her work is truly inspirational, and we are delighted that she's traveled all the way from India with one of her adopted sons to be with us tonight to receive the award and to address the audience. We will show a short video, and then a prize, which includes a cheque of £10,000, will be presented by His Holiness to Mrs. Sapkal. She has mobility difficulties, so will address us from the table. Thank you. Sindhutai Sapkal, also known as Mother of Orphans, is an Indian social worker and social activist known particularly for her work for raising orphan children. Brought up in abject poverty, she left school after the 4th grade, married at the age of 10. Her husband abandoned her at the age of 20, and she left home with her infant daughter, later donating her daughter to the trust. She now spends all of her time and work on raising orphan children. Since 2012, Sindhutai Sapkal has nurtured over 1,400 orphan children. Many of these children are now well-educated lawyers and doctors. Some, including her biological daughter, are now running their own independent orphanages. One of her children is now doing a PhD on her life. Till this day, she has been honoured with 500 awards. आज तो मैं सब भूल गई, मैं कहाँ थी और आज कहाँ तक आ गई। और मैं मेरा गुजरा हुआ ज़माने को आज बोलती कि ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। जब टूट गया तब यहाँ तक आ गई मैं। कुछ नहीं था मेरे पास। मैं रेलवे में रेलगाड़ी में भीख मांगती थी और रात को डर लगता था। 20 साल की उम्र थी तो मैं शमशान में रहती थी। और मेरे को ज़िंदगी मालूम पड़ी या मेरे को किसी ने बताया, शमशान में यानी मुर्दा जल रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कोई भी नहीं। और मेरे को आवाज़ आई शमशान में कि गलती कर रही सिंधुताई, किसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि सब खाली हाथ ही जाते हैं।
कफन को जेब नहीं होती सिंधुताई, कफन को जेब नहीं होती, और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। और मैंने जोर से चिल्लाया, मरना कैंसल, मरना कैंसल, मैं आज से जीऊँगी। और मैंने जीना सीख लिया। जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ हो गई। और एक बात मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा उधर करने को ये घटना ने मेरे को समझ में आया कि नहीं, और भी थोड़ा बढ़ना चाहिए काम, और भी औरों के लिए अपनी गरज है। तो मैं एक दिन स्टेशन पे बैठी थी, सबको ये होता है, समझ लेना। और एक भिखारी यानी भीख मांगने वाला आदमी बहुत बहुत बीमार था वो, और रात के 2 बजे थे, और मैं सोच रही थी कि क्या ये जीने में रखा है, चलो मरा तो अच्छा है। और मेरे पास जो बची खुची भाकर यानी रोटी थी वो मैंने खाई, और मरने के लिए जा रही थी रात के 2 बजे, मगर मरते समय भी मैंने रोटी नहीं छोड़ी। वो बची खुची रोटी मैंने साथ ले लिया, क्योंकि मरना नहीं हुआ तो भूख तो लगेंगी ना। तो वो रोटी लेके मैं मरने के लिए जा रही थी, और मैं थोड़ी चलते गई, और मेरे को रोने का आवाज़ आया। वो जो भिखारी था वो बहुत बीमार था, वो रो रहा था जोर जोर से कि बाबा मैं अभी मरने वाला हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को प्यास लगे बाबा, कोई इतना सब पानी पिलाए बाबा मेरे को, मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, मेरे को कोई नहीं। मेरे मन में आया चलो थोड़ा सा पानी पिला के मरते हैं, मरना तो है। वो मरते समय पानी मांग रहा हो तो मरने के लिए जा रही सिंधुताई, मैं पीछे मुड़ी, उसको पानी पिलाया, मेरे पास थी वो रोटी भी खिलाई, और मैंने उसको बोला कि बाबा मेरे पास रोटी है, थोड़ा रोटी खाओ, पानी पियो, बाद में मरो। और मैंने खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद वो मरच नहीं। फिर मैंने सोचा अरे ये खाने पीने के बाद मरता नहीं तो अपन काय को मरे, जो भूखे उसको खिलाना चाहिए अभी से। और मैंने शुरू किया खिलाना। और एक बात है बाबा, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। कफन जलने दो, दफन मत होना, यही मैंने सोचा, और अनाथों की माँ बन गई। और आज इतने दूर आके मैं पुरस्कार ले रहे हैं, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये पीस फाउंडेशन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो भाई लोग मेरे को दिखा रही थी, ये देखो यहाँ हम पानी दे रहे हैं, या हम कुआं खोद रहे हैं, या हम गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता था अरे मैं यही काम कर रही है, हम सब एक ही है, चलना है बबे। और मंजिल तो बहुत खतरनाक है, इतना सोपा रास्ता नहीं है, फिर भी मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। इसलिए मैं खुद का दुख, बच्चों के लिए मैंने पूरा दुख भूल गई, और दुखों को मैंने अपने पल्लू में ले लिया, और अनाथों की माँ बन गए। एक बात है, मेरे पास कुछ नहीं था, उम्र 20 साल की थी, और इतना सा बच्चा था मेरे पास, मेरा 10 दिन की बच्ची थी, और मैं भीख मांगती थी तो मेरे को खाने को नहीं मिलता था, मगर गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था। फिर मैं गाना बोलती थी, हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और खाना देते थे लोग। खुद दर्द की दवा हो औरों से न दवा ले, मेरा गाना भी ऐसा था कि जियो और जीने दो। खुद दर्द की दवा हो औरों से न दवा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवा ले। मेहनत से बनने वाले पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर।